Hello class, welcome back. Welcome back to your computer class. So class, in the last class, what we have done, we have started this MS Excel, and in MS Excel we have completed our chapter from the book. But now the next thing the thing that is remaining is the thing that is remaining there is that कि मैंने कल आपको बताया हाउ टू इंसर्ट टेबल, ठीक है। बट लेटर ऑन आई रियलाइज कि जब तक हमें टैब्स की किस रो में कितना टैब कौन कौन किस और उस टैब में कौन कौन से फंक्शन है हमें पता नहीं चलेंगे, तब तक हम एक्सेल में एक्सेल नहीं कर पाएंगे। ओके फाइन। तो today I am going to start this chapter Excel once again for you guys, and here I will teach you some of the very basic thing not the advanced one, but some of the very basic thing we will do. ठीक है, तो what are the content that we are going to cover today? The contents are as follows. First of all, we will do an introduction and then overview of Excel, office buttons. We will talk about ribbons also, then working with the cell, formatting text. ठीक है, आज try करेंगे इतना हम cover कर ले। चलो, let us start now. Fine. Okay. So first of all, what is this introduction to MS Excel? ठीक है, सबसे पहला क्या आता है? Introduction to MS Excel means what is MS Excel? So Excel is what? Excel is a computer program. Excel is what? Excel is a computer program and it is used to create electronic spreadsheets. Excel is a computer program and it is used to create the electronic spreadsheet. Now when we will talk about the spreadsheet, अब पहली बात तो ये कि एक्सेल क्या है? एक्सेल एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। फाइन ना, उसमें भी क्या उसमें हमें क्या बेनिफिट मिलता है? दैट इट्स अ स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट का मतलब क्या? यहाँ पे जो रो एंड कॉलम होते हैं वो अरेंज्ड होते हैं कुछ इस तरह से, राइट? या नाउ within Excel, user can organize data, create charts, and perform calculation. So within Excel, what we can do? Within Excel, the user can organize the data. User, that means user means we. What we can do? We can organize the data. Yes, that we know that Excel is used for what? Excel is used for primarily for organizing the data. Excel is used to organizing the data. Also we can create charts also. We can what? We can create charts also. Okay. अच्छा ठीक है, charts भी create कर लिया and after that, after creating charts, we can perform calculation also. Okay, हम क्या कर सकते हैं? We can perform the calculation also. ठीक है, Excel is what? Excel is convenient program. Excel is what? Excel is convenient program because it allows user to create large spreadsheets. Excel is a convenient program. It's a convenient program because it allow user to create a large spreadsheet. हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं एक्सेल में, है ना? और इनफैक्ट कभी कभी तो एक सिंगल स्प्रेडशीट में वो सारे आ भी नहीं पाते हैं। Okay, so Excel is what? Excel is a convenient program because it allows the user to create a large spreadsheet, reference information, and it allows for the better storage of the information. It allows for the better स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन जो होती है वो एक अच्छे तरीके से क्या होती है वहां पे स्टोर हो जाती है। फाइन, गॉट इट? Okay, Excel operates like other Microsoft Office program. Excel, what it does?
एक्सेल इज एक्सेल ऑपरेट्स लाइक अदर माइक्रोसॉफ्ट, मतलब क्या कि यहाँ पे जितने टैब्स होते हैं वो बहुत हद तक सिमिलर वही टैब्स होते हैं जो कि हमने पेंट में भी देखा, फिर हम उनको हम आफ्टर लुकिंग एट पेंट हमने उन्हें वर्ड में भी देखा, पावर पॉइंट में देखा, तो ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बस प्रोग्राम बदल जाते हैं। ओके, तो एक्सेल what it operates like the other Microsoft Office program and has many of the same function. It has what it has okay. Now overview of the Excel means Excel जब हम वो विंडो ओपन करते हैं तो वो हमें दिखेगा कैसे। So Microsoft Excel consists of a workbooks. Within each workbook there is an infinite number of worksheets, है ना। Within each workbook what happened, there is a infinite number of worksheets, ठीक है, इतना समझ में आ गया। Each worksheet contain columns and row. Each worksheet what it does, it contain columns and row. Each worksheet जो भी worksheet होती है Excel में वो क्या contain करती है, वो contain करती है columns and row. Where a column and row intersect is called a cell. Cell is what? Cell is that position where a row and column intersect. अब जैसे यहाँ पे ये columns आई हुई हैं और ये rows हैं, तो जहां पे वो इंटरसेक्ट कर रही, तो इंटरसेक्ट करके वो क्या बना रही, एक बॉक्स सा स्ट्रक्चर बना रही है, और इसी बॉक्स से स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इसी बॉक्स से स्ट्रक्चर को वी कॉल सेल। एंड इसी सेल में वी स्टोर इंफॉर्मेशन, वी स्टोर इंफॉर्मेशन इन दिस सेल ओनली, ठीक है। तो each worksheet contain columns and rows. Where a column and row intersect is called a cell. Example, cell D5 is located in column D. D5 की बात हो रही है, तो जब हम D5 की बात कर रहे हैं, so means what, जब हम D5 की बात करें मतलब कॉलम is D, this is the column, and 5 is what, 5 is the row, fifth one is the row, so this is what. Okay, सो वन मोर थिंग, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम सेल नेम चूज करते हैं, सेल नेम बनाते हैं, तो सबसे पहले हमारा रहेगा कॉलम लेटर, ठीक है, कॉलम अल्फाबेट या कॉलम लेटर एंड रो नंबर, एंड आफ्टर दैट वी विल मेंशन द रो नंबर। ओके, द टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन रिप्रेजेंट डिफरेंट वर्कशीट, ठीक है, टैब्स क्या रिप्रेजेंट करता है, डिफरेंट वर्कशीट विद इन अ वर्कबुक। यू कैन यूज द स्क्रॉलिंग बटन ऑन द लेफ्ट टू bring other worksheet into view, ठीक है। टैब्स एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन रिप्रेजेंट डिफरेंट वर्कशीट within a workbook. You can use the scrolling button on the left to bring the worksheet other worksheet into the view। देखो यहाँ पे आइडियली 3 शीट्स होती हैं, शीट 1, शीट 2 एंड देन शीट 3। आइडियली ये 3 शीट्स होती हैं, फाइन। तो जब ये 3 शीट्स होती हैं तो उसमें हमें क्या मतलब, इफ आई हैव कंपाइल दिस शीट देन आई कैन वर्क ऑन शीट 2 ऑल्सो, एंड देन आई कैन मूव टूवर्ड द शीट 3 ऑल्सो। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ MS Excel। MS Excel की ये एक खासियत होती है दैट व्हाट वी कैन डू। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ठीक है, तो एक्सेल के बारे में इतना देखा, चलो अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नाउ ऑफिस बटन, तो दे आर टेलिंग अस अबाउट द ऑफिस बटन। कुछ ऑफिस बटन, कुछ ऐसे शॉर्टकट्स जो कि क्या करते हैं, उनमें से कुछ ही हमें पढ़ने, हमें सारे नहीं पढ़ने, कुछ शॉर्टकट बटन हमें पढ़ने हैं, ठीक है, जैसे कि कॉपी सेव एंड ऑल, इन सारे का शॉर्टकट बटन हमें इस टर्म में पढ़ना है, सारा नहीं पढ़ना।
तो देखो पहला ऑफिस बटन जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है सॉरी न्यू बटन, मतलब न्यू टू ओपन न्यू वर्कबुक। देखो यहाँ पे जब आप फाइल टैब पे क्लिक करते हो ऑफिस बटन पे या फाइल टैब पे, तो यहाँ पे आपको पहला न्यू मिलता है। तो न्यू व्हाट इट हेल्प्स, सपोज आपने अपना पूरा काम कर लिया, नाउ व्हाट, ओके तो आपको क्या करना है, जब आपका आपने एक वर्कशीट पे काम कर लिया, नाउ यू वांट द अदर वर्कशीट, तो वेयर यू विल क्लिक ऑन द न्यू बटन। आप कहाँ क्लिक करोगे, you will click on the new button, fine। Now open, next is what, open button, to open an existing document, next is what, you have to click on the open button। आपने कहाँ क्लिक करना है, open button पे, to click on the existing document। save, to save a document, save किस लिए, to save a document, ठीक है। save as, to save a copy of the document, save as कब यूज करते हैं, to save a copy of the document, fine, okay। then we can also print this paper, है ना, मतलब जो पेज जिस वर्कशीट पे हम काम कर रहे हैं, what we can do, if we want we can print that also, हम उसे प्रिंट भी कर सकते हैं, फाइन। ओके so save, to save the document, save as to save a copy of the document, print to print a document, close to close the document, ठीक है। what you can do, you can close your document so that if you are done with the program, then you can close the document also। now let us move ahead, okay। अब यहाँ पे they are discussing about the ribbons, part of the ribbons and ribbons, और क्या क्या चीजें इसमें हैं, चलो। The three part of the ribbons are tabs। रिबन्स में कितने पार्ट होते हैं, 3। अब देखो रिबन्स के बारे में हमने पावर पॉइंट में भी पढ़ा, वर्ड में भी पढ़ा, वर्ड पैड में भी पढ़ा। तो रिबन्स में कितने पार्ट होते हैं, फर्स्ट इज टैब, द अदर वन इज ग्रुप्स, द नेक्स्ट वन इज कमांड, ठीक है। टैब्स, ग्रुप एंड कमांड। टैब्स क्या, देयर आर 7 टैब अक्रॉस द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। टैब क्या, देयर आर 7 टैब्स अक्रॉस द टॉप ऑफ द एक्सेल विंडो। एक्सेल विंडो के टॉप पे यू विल गेट द 7 टैब, 7 टैब आपको मिलेंगे। ग्रुप्स आर सेट ऑफ द रिलेटेड कमांड डिस्प्लेड ऑन द टैब। ग्रुप्स क्या होते हैं, ग्रुप्स आर द सेट ऑफ रिलेटेड कमांड, दीज आर द सेट ऑफ these are what, these are the set of related command। now after this what, commands, command is a button, a menu or a box where you enter the, where you enter what, where you enter the information, where you enter the information, तो उससे हम क्या बोलते हैं, we call that command, ठीक है, फाइन। तो टैब्स, ग्रुप एंड कमांड, ये क्या होता है, टैब्स, ग्रुप एंड कमांड आर व्हाट, these are the three part of the these are the three part of the ribbon, ठीक है। रिबन के ये क्या होते हैं, ये 3 पार्ट होते हैं, फाइन। लेट अस मूव टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। ये तो 3 पार्ट हो गए रिबन के। टैब्स, अब फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं, 7 टैब्स। ग्रुप, अब देखो ग्रुप में देखो, अब जैसे यहाँ पे ग्रुप्स में होम टैब को, होम टैब है उसको इन्होंने क्या किया, ग्रुप्स में बांट दिया। कैसे ग्रुप्स में बांट दिया, सी, क्लिपबोर्ड एक अलग ग्रुप बना दिया कि यहाँ पे सिर्फ क्लिपबोर्ड की चीजें, कट कॉपी पेस्ट की चीजें रहेंगी। फॉन्ट को एक अलग ग्रुप में डाल दिया। फॉन्ट को एक अलग ग्रुप से क्या मतलब था कि फॉन्ट की जितनी भी आप फॉर्मेटिंग वाली कमांड्स होंगे, वेदर इट इज बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट साइज, फॉन्ट कलर और व्हाटसोएवर, वो एक अलग ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट, अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट को एक अलग ग्रुप में डाल दिया, नंबर्स को एक अलग ग्रुप में डाल दिया। तो ये क्या है, ये सारे व्हाट आर दीज आर द ग्रुप्स। अब इन्होंने क्या कर दिया, ग्रुप्स बना दिया। अच्छा ठीक है, ग्रुप्स तो हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट इज व्हाट, कमांड्स। अगला क्या है, कमांड। अ कमांड इज अ बटन, अ मेनू और अ बॉक्स वेयर यू एंटर द इंफॉर्मेशन। व्हाट इज कमांड, कमांड क्या होता है, कमांड इज अ बटन और अ मेनू और अ बॉक्स वेयर यू एंटर द इंफॉर्मेशन, ठीक है।
Okay, moving ahead. Now working with the cell. How we can working with the cell, ठीक है? Now to copy and paste content. देखो सेल अभी हमें पता चला व्हाट इज द सेल इंटरसेक्शनल पॉइंट ऑफ अ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड द सेल दिस ये जो सारे बॉक्स हैं ये सारे बॉक्स क्या हैं दीज आर द सेल ठीक है तो टू कॉपी एंड पेस्ट द कंटेंट आपको पता है कंट्रोल प्लस वी आप इस तरह से कॉपी पेस्ट वाला वर्क आप कर सकते हो सेलेक्ट द सेल और सेल यू विश टू कॉपी click the copy command in the clipboard group on the home tab select the cell or cells where you want to paste the information now if you want to paste the information paste it in any of the cell click on the paste command then what click करिए paste command पे next is what you have to click on the paste command okay नाउ मूविंग अहेड आफ्टर दिस अब अगला टॉपिक हमें क्या करना है चलो ठीक है चलो फॉर्मेटिंग टेक्स्ट अब एक ये अच्छा टॉपिक है दैट हाउ वी कैन फॉर्मेट अवर टेक्स्ट जो भी टेक्स्ट हम डाल रहे हैं जो भी टेक्स्ट हम सेल्स में एंटर कर रहे हैं हाउ वी कैन फॉर्मेट दैट ठीक है हम उसे फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं जो भी टेक्स्ट हम एंटर कर रहे हैं हम उसे फॉर्मेट कैसे करेंगे नाउ टू फॉर्मेट द टेक्स्ट इन अ बोल्ड इटैलिक और अंडरलाइन ठीक है आपको क्या करना है इफ यू वांट टू फॉर्मेट द टेक्स्ट नाउ सपोज इफ यू वांट टू मेक योर हेडिंग ठीक है आपने क्या सोचा कि भाई जो हेडिंग है मेरी उसको मैं क्या बना दूं उसको मैं बोल्ड इटैलिक्स और अंडरलाइन कर दूं ठीक है इफ यू वांट टू मेक योर हेडिंग बोल्ड इटैलिक एंड अंडरलाइन व्हाट यू हैव टू डू लेफ्ट क्लिक व्हाट यू हैव टू डू लेफ्ट क्लिक और ठीक है फाइन ड्रैग करके सबसे पहले आप सेलेक्ट कर लो वॉट एवर द टेक्स्ट सपोज करो आपको किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है तो ड्रैग करके पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करो देन व्हाट आफ्टर सेलेक्टिंग दैट टेक्स्ट आपको फिर क्या करना है ठीक है आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया अच्छा ठीक है आफ्टर सेलेक्टिंग योर टेक्स्ट आपको क्या करना है उसे बोल्ड करना है तो होम टैब में आपको पता है होम टैब में फॉन्ट ग्रुप में यू विल गेट द बोल्ड ऑप्शन जस्ट क्लिक ऑन द बोल्ड ऑप्शन आपका टेक्स्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा आपका टेक्स्ट जो होगा वो कैसा हो जाएगा बोल्ड हो जाएगा okay so the left click a cell to select it or drag your cursor over the text in the formula bar to select it click the bold italic or underline command next is what you have to click on the bold italic or the underline command fine चलो करके देखते हैं ठीक है अब इतना पढ़ा करके देखते हैं दिस इज अवर बॉक्स नाउ सपोज अगर मैंने यहाँ पे लिखा बुक्स sorry now I want to increase the I want to make it bold so what I have to do ठीक है टू मेक इट बोल्ड आई हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट तो मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया सॉरी नाउ आफ्टर सिलेक्शन व्हाट आई हैव टू डू सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना होगा ठीक है एक बार मैंने सेलेक्ट कर लिया फिर मुझे क्या करना होगा आई हैव टू क्लिक हियर ऑन बोल्ड एंड देखो ये टेक्स्ट क्या हो गया ये टेक्स्ट कैसा हो गया बोल्ड हो गया है ना तो दिस इज हाउ वी कैन मेक आवर टेक्स्ट बोल्ड नाउ next is to make the text italic and underline okay
तो हमने क्या किया, देखो यहाँ पे बुक्स लिखा था, उसको हमने क्या किया, बोल्ड किया। चलो अब इसी बुक्स को हम और भी फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेटिंग से मेरा मतलब क्या है, हमने यहाँ पे बुक लिख लिया, हमने उसे फॉर्मेट भी कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज आई वांट टू मेक इट अंडरलाइन ऑल्सो, तो आई विल मेक इट अंडरलाइन। ठीक है, चलो अच्छा अब एक काम करते हैं। बुक्स सब्जेक्ट क्लास। अब मैंने यहाँ पे कुछ और फील्ड्स क्या किए, ऐड कर लिए। यहाँ पे मैंने क्या किया, कुछ और फील्ड हमने ऐड कर लिए, सब्जेक्ट क्लास हाउस ऐसे और फील्ड ऐड कर दिया। नाउ आई वांट टू कि भाई सारे के सारे क्या हो, बोल्ड हो जाएं। तो मुझे क्या करना है, मुझे खाली ये बॉक्सेस सेलेक्ट करना है एंड देन आई हैव टू मेक इट bold and underline. And in a similar way I can also change the, I can also make it italic also. I can also change its appearance and make it italic. ठीक है, अभी मैंने क्या किया, अभी मैंने इनको क्या कर दिया, इटैलिक कर दिया। ठीक है, ओके, नाउ मूविंग अहेड। तो वी वर ऑन दिस स्लाइड एंड हम बात कर रहे थे टू फॉर्मेट टेक्स्ट इन बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। ठीक है, वी वर टॉकिंग अबाउट टू फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट एंड मेकिंग इट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। नाउ नेक्स्ट इज फॉन्ट स्टाइल। नेक्स्ट वी आर going to talk about the font style. These are the font style and we want to change the font style. ठीक है, अच्छा, to change the font style अभी क्या करना है, suppose if you want to change the font style, select the cell or cells you want to format. Select the cell or the cells you want to format. Left click the drop down arrow next to the font style box on the home tab. Select the font style from the list. Next is what? Next what you have to do? You have to click on the, you have to select a font style from the list. You have to click on the font style of the from the list. Okay. Now इतना कर लिया हमने, चलो moving ahead. इतना कर लिया, चलो थोड़ा सा आगे करते हैं। अब इसको हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज करके देखते हैं कि कैसे हम इन रियली इन एम एस एक्सेल हम इसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी ये हमारे फॉन्ट हैं, नाउ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल। तो देखो, टू चेंज द फॉन्ट स्टाइल वेयर आई हैव टू क्लिक, I have to click somewhere here. I have to click somewhere here. ओके, चलो करके देखते हैं। ओके, ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करो और जो भी आपको फॉन्ट पसंद आ रही है, यू कैन चूज दैट वन। जो सी भी फॉन्ट आपको अच्छी लग रही है वो आप उसको क्या कर सकते हो, चूज कर सकते हो। तो मुझे ये फॉन्ट स्टाइल पसंद है, आई विल चूज दिस वन। तो देखो अभी क्या हो गई, मेरी फॉन्ट स्टाइल क्या हो गई, चेंज हो गई है ना। ओके, नाउ आफ्टर दिस फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। अभी फॉर्मेटिंग टेक्स्ट में और क्या करना है, टू चेंज द फॉन्ट साइज। देखो बहुत छोटे छोटे लेटर्स जो हम प्रेजेंटेशन या वर्ड्स में लिखते हैं वो अच्छे नहीं लगते, बहुत छोटे छोटे लेटर्स नहीं अच्छे लगते। नाउ नाउ आई वांट टू चेंज द फॉन्ट साइज। ठीक है, फॉन्ट साइज अगर मुझे चेंज करनी है देन व्हाट आई हैव टू डू, ओके, मुझे फॉन्ट साइज चेंज करनी, मुझे क्या करना होगा, फॉन्ट साइज चेंज करने के लिए सेलेक्ट द सेल और द सेल्स यू वांट टू फॉर्मेट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेलेक्ट द सेल और द सेल्स जिसको हमें क्या करना है, इफ यू दैट वी वांट टू फॉर्मेट। लेफ्ट क्लिक द ड्रॉप डाउन एरो नेक्स्ट टू द फॉन्ट साइज बॉक्स ऑन द होम टैब। सेलेक्ट अ फॉन्ट साइज फ्रॉम द लिस्ट। लिस्ट से आप क्या कर सकते हो, फॉन्ट साइज आप क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो।
ओके ठीक है, टू चेंज द फॉन्ट साइज, चलो करके देखते हैं। अच्छा ठीक है, तो फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं ना। एक और चीज हम पहले रीड कर लें, टू ऐड अ बॉर्डर, हाउ वी कैन ऐड बॉर्डर नाउ, सपोज टू ब्यूटीफाई अवर वर्कशीट वी वांट टू ऐड अ बॉर्डर आल्सो। ठीक है, अब हमें क्या करने का मन है, वी वांट टू ऐड द बॉर्डर। नाउ इफ यू वांट टू ऐड द बॉर्डर, सेलेक्ट द सेल और द सेल्स यू वांट टू फॉर्मेट। फर्स्ट इज व्हाट, you have to select the cells or the cells that you want to format. Click the drop down arrow next to the border command on the home tab. A menu will appear with border option. What will happen, a menu will appear with the border option, ठीक है, and you can click on that. Now to change the text color, see what we are doing right now, अभी हम क्या कर रहे हैं, वी आर रीडिंग ईच, वी आर रीडिंग द टेक्स्ट। ठीक है, अभी हम टेक्स्ट रीड कर रहे हैं एंड लेटर ऑन वी विल डू द प्रैक्टिकल्स। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल चलो स्लाइड में जितनी भी फॉर्मेटिंग की चीजें हैं वो हम समझ लें और उसके बाद वी विल डू द प्रैक्टिकल। Okay, to change the text color, next is what, if you want to change the text color, select the cell or the cells you want to format. Left click the drop down arrow next to the text color command. A color palette will appear. What will happen, a color palette will appear. Select a color from the palette. So this is what, this is the color palette, and what we have to do, this is the color palette and इस palette में, दिस इज द कलर पैलेट एंड हमें से इसे क्या करना चाहिए, हमें इनमें से क्या करना होगा, इनमें से वी कैन चूज अ कलर एंड हमारा टेक्स्ट कलर जो होगा वो उसी कलर का क्या होगा, हमें दिखेगा। फाइन, टू ऐड अ फिल कलर, नाउ सपोज दीज आर द सेल्स, नाउ आई वांट टू फिल द कलर। ठीक है, अब ये बॉक्सेस जैसे बने हुए हैं, सपोज अपने डॉक्यूमेंट को और ज्यादा ब्यूटीफाई करने के लिए, आई वॉन्ट टू ब्यूटीफाई। ठीक है, तो अगर मुझे ब्यूटीफाई करना है तो मुझे क्या करना होगा, मुझे ब्यूटीफाई करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, आई हैव टू फिल द कलर। फाइन, नाउ मूविंग अहेड। Conditional formatting, next is what, conditional formatting. Now what is conditional formatting, to apply conditional formatting select the cells you would like to format. First of all, to apply the conditional formatting, select the cell that you want to format. Now next is what, select, अच्छा conditional formatting. So about the conditional formatting, देखो यहाँ पे भी क्या है, आप this is also a type of formatting. A menu will appear and you have from where you will get the format option. So these are all are the option, but ये अभी हमें नहीं पढ़ना, conditional formatting के बारे में अभी हमें क्लास 5 में नहीं पढ़ना होगा, है ना। Okay, now let us move toward our worksheet. Okay, so see, this is our, where is our worksheet? This is our worksheet, and now suppose if we want to, if I want to change the color, then what I have to do, if I want to change the color, मुझे क्या करना होगा, इसको सेलेक्ट किया, कलर पे जाके कलर किया, और अब देखो ये किस कलर का हो गया है, रेड। ये किस कलर का हो गया है बेटा, ये हो गया है रेड कलर का। ओके, तो आज की क्लास में हमने अब यहाँ तक पढ़ा अबाउट द फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग तक हमने इस क्लास में पढ़ा, एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल सी सम मोर एस्पेक्ट। ठीक है, कुछ और टैब्स के बारे में वी विल अंडरस्टैंड। ठीक है, सो क्लास दिस इज इट फॉर टुडे, एंड नाउ वी विल मीट इन अवर नेक्स्ट क्लास। ओके, तो चलो, मैम इज सेइंग यू बाय बाय।